to look into. I don't know what the solution is to it, but we must do it because in the larger interest of all my friends, and I think it's the most wonderful debate today because Professor Saab and my friend Kalanidhi, who's not here just now, but both of them have spoken against smoking. So, you know, umeed pe duniya kayam hai. So I'm hoping that there will be a change even in them. But sir, I would like to ask a few questions to the Honorable Finance Minister that I appreciate her bringing the bill. But what's really alarming today is in Delhi, walking around in Delhi is like smoking 50 cigarettes a day. So I think I would urge her, and I even spoke to Bhupender ji the other day, I was fortunate enough to meet him in Parliament, that why don't you put a consensus in Parliament and give us targets? Give targets to every member of Parliament where we can help you assisting for all these larger social issues. कभी तो राजनीति छोड़ के हम सब ने देश के लिए कुछ करना चाहिए. So can we do something about for smoking? Can we do something for air pollution? So if you also give us some targets, I was praising him. I took Kalanidhi ji's name because I really appreciate his intervention. But is there something that we can do more today for air pollution? And for all the solution that, no, I hope he does something villages. If he gives us from Tamil Nadu a solution, we'll implement it in Maharashtra to stop smoking. I'll give solution for entire India. And we are happy to take it, and we'll give it your name also. But I think we can, if there is something we can together do for this, we'd be very happy. The Honorable Purandeshwari ji talked about welfare states. I appreciate her efforts. She's one of the finest parliamentarians we have. But sir, welfare state is, do we really want India to be a welfare state? I mean, I come from a state which recently had an election, and a program which the Honorable Shivraj Singh ji started in Madhya Pradesh, which was a very big success, was used in Maharashtra for Ladli Behnas, and it was effectively implemented before the election. But what happened to the welfare after election, पता नहीं. 25 लाख ये शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश में नहीं किया, लेकिन महाराष्ट्र में हुआ. 25 लाख महिलाओं के नाम कम किए. So this whole welfare business, I don't know, is really the right way forward. So what really is the objective? I go back to my first point that what is the objective? Even the farmers issue. I appreciate Shivraj Singh ji's work. Sir, he was most kind to us when Maharashtra had a huge, हमारे यहाँ बहुत बारिश हुई. He was one of the ministers who reached out to our government, most helpful. He wanted to come and help us in our state. He himself said कि जो भी लगेगा हम यहाँ से दे देंगे. But it's unfortunate, I say this with a heavy heart, that Maharashtra government has still not sent him a proposal. महाराष्ट्र में कह रहे हैं कि कमेटी बनेगी, कभी उसका रिपोर्ट आएगा, उस पे क्या हो जाएगा? I really appreciate. If you can yield, तो I think. Yes, please, I'll be happy to. शिवराज सिंह, मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र की सरकार ने अभी जो त्रासदी आई थी, भयानक त्रासदी थी बाढ़ की, उसके बाद अपना प्रपोजल 27 तारीख को केंद्र सरकार को भेज दिया है. इतना केवल मैं करेक्ट कर रहा हूँ आपको, भेजा है महाराष्ट्र सरकार ने. थैंक यू. आपको जब जानकारी रहेगी तो आपने, लेकिन अब आ गया है. कल का सवाल जो माननीय कृषि मंत्री जी ने दे दी. नहीं, ये इनका बड़प्पन है, वो सरकार को बचा रहे हैं. क्योंकि आज ही मैंने कृषि मंत्री से बात की महाराष्ट्र में, उन्होंने कहा हमने कुछ रिपोर्ट नहीं भेजी अभी तक. पूरी हमारा एक सर्वे हो रहा है, उसके बाद कमेटी बनेगी, कमेटी के बाद रिपोर्ट आएगा. छोड़ देंगे अभी वो. माननीय कृषि मंत्री जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है. प्राकृतिक आपदाओं में मैं भी लगातार राज्य के संपर्क में रहता हूं. उन्होंने सचमुच में भेज दिया है. चलिए, बहुत उम्मीद है. महाराष्ट्र सरकार से नहीं होगी, लेकिन उनसे है. ये राजनीति है. और दूसरा, कृष्णा जी ने जो कहा कि वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, वी आर हैप्पी इफ वी आर. बट आई वुड जस्ट लाइक टू, मे बी ही मिस्ड आउट इन हिज रीडिंग कि IMF का एक नया रिपोर्ट आया है. मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूँ 8.2% अपार्ट फ्रॉम दिस. हाँ, तो आई एम नॉट श्योर सर, आई एम वेरी कंफ्यूज्ड. आई एम नॉट अ फाइनेंस एक्सपर्ट. जो मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ उससे ही कुछ समझ में आता है उसमें. तो एक रिपोर्ट आई है सर, शायद वो फाइनेंस मिनिस्टर ही क्लैरिफाई कर सके कि पेपर में आई बात मैं कह रही हूँ, मुझे नहीं पता उसमें. बट IMF की रिपोर्ट आई है, उसमें कहा है कि आर सिचुएशन इज स्लाइटली डिफरेंट देन व्हाट कृष्णा जी वाज सेइंग. सो आई अप्रिशिएट एंड रिक्वेस्ट द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर टू क्लैरिफाई, सो द वर्ल्ड नीड्स टू नो वेयर रियली India stands. And if the IMF report, which has downgraded us, has given wrong information about India, we need to correct it to make sure that there is no bad perception and information about India.
So I think this is the limited point. I don't think we have any more suggestions to make, but we appreciate the Your efforts. time was only 3 minutes, but you spoke more than 8 minutes. Sir, you are very kind to me or over-indulging me. Thank you. Thank Thank you, you. but I will Thank you. support the bill wholeheartedly. And I hope the objective is very clear to reduce smoking and make sure the tobacco farmer doesn't get hurt. We can always finance Shivraj Singh ji. जरूर उसके लिए कुछ अच्छा करेंगे. Thank you, sir. Thank you, Supriya. Good debate is going on. Sri Ravindra Vaikar ji. Sri Ravindra Vaikar ji. धन्यवाद सभापति महोदय। सेंट्रल एक्साइज संशोधन विधेयक 2025, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे देश की अर्थव्यवस्था और जन स्वास्थ्य से जुड़े एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक सेंट्रल एक्साइज संशोधन विधेयक 2025 पर अपनी बात रखने का अवसर दिया। महोदय, मैं अपनी पार्टी शिवसेना की ओर से इस विधेयक का पूरेपूर समर्थन करता हूं। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन जी को विशेष बधाई देता हूं। उन्होंने न केवल देश के राजस्व को सुरक्षित रखने के लिए बल्कि देश की युवा पीढ़ी को नशे के चुंगल से बचाने के लिए ये साहसिक और दूरदर्शी कदम उठाया है। जीएसटी और इनकम टैक्स रिफॉर्म्स के बाद ये एक और ऐतिहासिक सुधार यानी रिफॉर्म है जो विकसित भारत और स्वस्थ भारत को भारी नुकसान होगा। साथ ही कीमतें कम होने के इसका सेवन बढ़ सकता है। लेकिन सरकार ने बड़ी सूझबूझ का परिचय दिया है। इस विधेयक के माध्यम से सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 की अनुसूची 4th शेड्यूल में संशोधन किया जा रहा है। सरकार कंपेंसेशन सेस की जगह एक नई लेवी और एक्साइज ड्यूटी ला रही है ताकि टैक्स का ढांचा बना रहे और राजस्व सुरक्षित रहे। इस विधेयक के तहत जो कड़े प्रावधान किए गए उसका मैं स्वागत करता हूं। तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादन पर 40% जीएसटी के ऊपर अब 70% या उससे अधिक का सेस लगाने का प्रस्ताव है। जो माननीय वित्त मंत्री ने कहा था कि जीएसटी हम 40% के ऊपर नहीं जा सकते, तो ये सेस 70% का उससे अधिक का भार सेस लगाने का प्रस्ताव किया है। सिगारेट पर उसकी लंबाई यानी लेंथ और फिल्टर के आधार पर 2,700 रुपये से लेकर 11,000 रुपये प्रति हजार स्टिक्स तक की स्पेसिफिक ड्यूटी तय की गई है। इतना ही नहीं है, अनमैच्योर टैबेको पर 60 से 70% और निकोटीन इनहेलेशन उत्पादन पर 100% की ड्यूटी लगाने का प्रावधान है। महोदय, ये कदम इसलिए जरूर था क्योंकि सिगारेट, हुक्का, जर्दा और सुगंधित तंबाकू जैसे उत्पादन समाज के लिए घातक है, मगर इन पर टैक्स कम होता तो ये सस्ते हो जाते और समाज में जहर और तेजी से फैलता। सरकार ने टैक्स के बोझ को बराबर रखकर देश हित में फैसला किया है। यह बिल सिर्फ अर्थशास्त्र का नहीं बल्कि जीवन रक्षा का भी बिल है। आज तंबाकू हमारे देश के लिए एक महामारी बन चुका है। हमारे देश में हर साल तंबाकू सेवन से 13.5 लाख यानी 1.35 मिलियन लोगों की मौत होती है। ये किसी भी युद्ध बीमारी से होने वाली मौतों से कहीं ज़्यादा है। ये बेहद दुख कि भारत में होने वाले हर 10 मौतों में से एक मौत यानी 1:10